Good morning, everyone. Welcome back in the classes. I hope the work which was given, have you done all? Lab manual I have given. Have you done that? One experiment was given. I hope everyone has done that. And on Saturday, reading was given a chapter. Is reading done by everyone? I hope that is done by everyone. So let us start the today's work, the topic. Firstly, you may see these instruments here. These are the musical instruments. Some of you going in the music also. Many are there who are going in the music. So what are these musical instruments are being placed here? क्यों है ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे? बिकॉज वी लिसन देयर वॉइस. जब भी इनको बीट करते हैं या इनकी स्ट्रिंग्स को मूवमेंट होती है, तो जो मूवमेंट से जो वाइब्रेशन होगी, दैट वाइब्रेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द साउंड. ओके, सो लेट अस कम टू द पैराग्राफ. हाउ डू यू come to know that a period is over in your school? कि एक पीरियड ओवर हो चुका है स्कूल में. You come to know easily that someone is at your door when he knocks or you hear the sound of the doorbell. It is very clear. Yes, हम स्कूल में बेल भी सुनते हैं. We hear the ring of the phone. We hear the doorbell. We hear the vehicle sound. We hear the music. We hear the sound of the animals, birds. Many things are there. So most of the time you can make out that someone is approaching you by just hearing the footsteps. We are able to listen the footsteps also. You might have played a game called hide and seek. Hide and seek, it is a very favorite game, सभी खेलते हैं. In this game, a person is blindfolded and has to touch the remaining players. Yes, and they are just by putting any cloth on the eyes, they're closing the eyes. Then that blindfolded person is just catching the other players. How is the blindfolded person able to guess which player is closest to her? जो पर्सन ब्लाइंड फोल्ड है वो कैसे जान सकता है कि कोई प्लेयर पास में है? बाय द फुट स्टेप्स हियरिंग. यस, उसके फुट स्टेप को सुन के. साउंड प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स. इट हेल्प्स अस टू कम्युनिकेट विद वन अनदर. वी हियर अ वैरायटी ऑफ साउंड्स इन आवर सराउंडिंग्स. यस, हमारी किस में हेल्प करता है? इन आवर लाइव्स, कम्युनिकेशन में हेल्प करता है. एंड वी लिसन, वी हियर अ वैरायटी ऑफ साउंड्स इन आवर सराउंडिंग्स. यू नो दिस थिंग. मेक अ लिस्ट ऑफ द साउंड्स यू हियर इन योर सराउंडिंग्स. हम कौन कौन सी सराउंडिंग्स में साउंड सुनते हैं? इन द म्यूजिक रूम ऑफ योर स्कूल यू हियर द साउंड produced by musical instrument like flute, tabla, harmonium, sitar. There are many musical instruments. How is sound produced? How does it travel from one person to one place to another? How do we hear sound? Why are some sounds louder than others? We shall discuss some such questions in this chapter. Okay, कि साउंड एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक कैसे जाती है, हम साउंड सुनते कैसे हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स की साउंड लाउडर क्यों है दूसरे ऑब्जेक्ट से. ओके, सो इट इज़ वेरी बेसिक अबाउट द चैप्टर. लेट अस कम टू द नेक्स्ट पेज. एंड प्लीज़ ओपन योर बुक्स एवरीवन ऑल्सो. सभी की बुक्स साथ में ओपन हो. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ओपन योर बुक्स. ओके, so sound is produced by a vibrating body. Touch the school bell when not in use. What do you feel? Again touch it when producing sound. Can you feel it vibrating? वाइब्रेशन के कारण ही साउंड प्रोड्यूस होगी. जब हमने ऑब्जेक्ट को या बेल को बीट किया, देन इट विल शोइंग वाइब्रेशंस, और वाइब्रेशन से क्या प्रोड्यूस हुआ? साउंड. सो देयर एक्टिविटी 13.1. Let us come to this one. Take a metal plate or a pan as it is, you can see here. Hang it as convenient place in such a way, convenient means which is very comfortable to you.
दैट इज डज नॉट टच एनी वॉल, कि ये वॉल को टच ना करे. नाउ स्ट्राइक इट विद अ स्टिक. यू कैन सी हियर द चाइल्ड इज striking the pen with a stick. Do you hear a sound? Touch the plate or pen gently with your finger. Gently means softly. Do you feel the vibrations? क्या vibration feel हुई? Again strike the plate with the stick and hold it tightly with your hands. Again strike the plate with the stick and hold it tightly with your hands immediately after striking. Do you still hear the sound? Touch the plate after it stops producing sound. Can you feel the vibrations now? इसमें क्या है कि अगेन स्ट्राइक द प्लेट विद अ स्टिक. दोबारा से प्लेट्स को स्ट्राइक करो. किससे? स्टिक से. और होल्ड इट टाइटली विद योर हैंड्स इमीडिएटली आफ्टर स्ट्राइकिंग. और अपने हैंड से टाइटली इसको होल्ड करो स्ट्राइकिंग के बाद, जस्ट बाद. क्या अभी भी आपको साउंड सुनी? टच द प्लेट आफ्टर इट स्टॉप प्रोड्यूसिंग साउंड. उसके बाद उसको टच करो व्हेन इट स्टॉप प्रोड्यूसिंग साउंड. कैन यू फील द वाइब्रेशंस नाउ? दिस एक्टिविटी तो आई थिंक आपने ट्राई भी की होगी सभी ने. करके देखना. प्लकिंग द रबर बैंड. टेक अ रबर बैंड, पुट इट अराउंड द लॉन्गर साइड ऑफ अ पेंसिल बॉक्स. रबर बैंड लो, पुट इट अराउंड द लॉन्गर साइड ऑफ अ पेंसिल बॉक्स. इंसर्ट 2 पेंसिल्स बिटवीन द बॉक्स एंड द स्ट्रेच्ड रबर. ओके, बॉक्स के और स्ट्रेच रबर की मीन्स 2 पेंसिल इंसर्ट करो. नाउ प्लक द रबर बैंड समवेयर इन द मिडल. प्लक मीन्स उसको आप टच करो अपनी फिंगर्स, 2 फिंगर्स के बीच में लेके उसको ऊपर उठाओ. अब आपको साउंड सुनेगी. डू यू हियर द साउंड? एनी साउंड? ट्राई करके देखना. टेक अ रबर बैंड, ज्योमेट्री बॉक्स लो, उसके ऊपर 2 पेंसिल्स लगा के इंसर्ट करके उसको रबर बैंड से टाई कर दो और बीच में से रबर बैंड को टच करना. देन यू विल फील द वाइब्रेशंस. और उनके कारण क्या प्रोड्यूस होगी? साउंड प्रोड्यूस होगी. सो एज वी लर्न इन क्लास 7th, the to and fro or back and forth motion of a object is called vibration. Vibration क्या था? To and fro movement, or you can say back and forth motion of an object is called vibration. It is here. When a tightly stretched band is plugged, जब हम tightly stretched band को plug करते हैं, it vibrates and produces sound. When it stops vibrating, it does not produce any sound. So we come to a conclusion here. हमें यहाँ पे क्या रिजल्ट मिला कि अगर वाइब्रेशन है तो साउंड प्रोड्यूस होगी. जब हमने इसको यहाँ से बीच में से ऊपर उठाएंगे तो वाइब्रेशन होंगी. उन्हीं वाइब्रेशन से क्या प्रोड्यूस होगी? साउंड. अगर वाइब्रेशन नहीं है तो साउंड भी नहीं होगी. ओके, सो व्हेन इट स्टॉप वाइब्रेटिंग इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड. क्लियर? सो एक्टिविटी 13.3 पे आते हैं. लेट अस सी द डायग्राम वंस. यू कैन सी हियर द डायग्राम. ओके, सी द डायग्राम हियर वंस. सो लेट अस कम बैक. सॉरी. सो टेक अ मेटल डिश, प्योर वाटर इन इट. एक मेटल की डिश लो और उसमें पानी डाल दो. स्ट्राइक इट एट इट्स एज विद अ स्पून. इसके एज पे स्पून से स्ट्राइक करो. डू यू हियर अ साउंड? क्या साउंड सुनती है? अगेन स्ट्राइक द डिश एंड देन टच इट. दोबारा स्ट्राइक को डिश को स्ट्राइक करो. अगेन टच इट. कैन यू फील द डिश वाइब्रेटिंग? क्या आर यू फीलिंग द डिश इज वाइब्रेटिंग? स्ट्राइक द डिश अगेन. लुक एट द सरफेस ऑफ वाटर. जब आप जो डिश आपने ली है उसको स्ट्राइक करेंगे और जो उसमें वाटर है डिश में, तो उसमें वेव्स प्रोड्यूस होंगी. ओके, जब आप पानी में कुछ थ्रो करते हो, इफ़ यू आर गोइंग समवेयर एंड यू सी एनी स्ट्रीम इज़ देयर, रिवर इज़ देयर, उसमें आप कुछ थ्रो करते हो तो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं जिनको हम लहरें बोलते हैं. ओके, डू यू सी एनी वेव्स देयर? नाउ होल्ड द डिश. व्हाट चेंज डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ वाटर? डिश को होल्ड किया तो अब आप क्या चेंज देखेंगे उसमें? कैन यू एक्सप्लेन द चेंज? इज़ देयर अ हिंट टू कनेक्ट साउंड विद द वाइब्रेशंस ऑफ अ बॉडी? बताइए आप लोग, क्योंकि जो उसमें वाइब्रेशन हुई उसी कारण जो वेव्स प्रोड्यूस हुई. ओके, वाइब्रेशन मीन्स प्रोडक्शन ऑफ वेव्स.
So diagram is, you can try it at home also. This thing you may try at your home. We see that a vibrating object produces sound. एक vibrating object क्या है, sound produce करेगा. In some cases the vibrations are easily visible to us. कुछ केसेस में तो वाइब्रेशंस हमें इजीली विजिबल हो जाती हैं, बट इन मोस्ट केसेस देयर एम्पलीट्यूड इज सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम. बट कुछ ऑब्जेक्ट्स में वी आर नॉट एबल टू फील देम. हाउ मीन्स वी कैन नॉट सी देम, वी कैन फील बट वी कैन नॉट सी. Okay, this instrument I think mostly used by many students. Vendors also come to sell this. Take a hollow coconut shell लो, and make a musical instrument iktara. You can also make it with the help of an earthen pot. earthen pot की हेल्प से बना सकते हैं. Play this instrument and identify its vibrating part. तो वाइब्रेशन किस पार्ट में होगी बताइए. यू कैन ट्राई टू मेक इट. ओके, तब आप लोग मुझे बताना कि वाइब्रेशन किस पार्ट में होगी. बिकॉज जो यहाँ पे ये हम थ्रेड या वायर जो भी होती है, जब हम इसको स्ट्राइक करते हैं इस वाले पार्ट से, ऊपर वाले पार्ट से, जो ये ऊपर वायर भी लगी इस पर, तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस तो होती है ना, उसी कारण साउंड प्रोड्यूस होती है. ओके, ट्राई टू मेक इट देन टेल टू मी. So make a list of familiar musical instruments and identify their vibrating parts. Like it is here also, musical instrument and their vibrating parts. A few examples are given in table 13.1. Complete rest of the table. Okay, I will send this table in the class. You may see from there also. Many of you might have seen the manjira, the ghatam, and the nut and kartal. These are the name of musical instruments. These musical instruments are commonly used in many parts of our country. जो musical instrument हैं, they are many used in the parts of the country. These instruments are simply beaten or struck. या तो उनको beat करते हैं या उनको struck करते हैं. Can you name a few other musical instruments of this type? You too can take a musical instrument. Okay, you may see you are going to the music lab also. Many students are playing the musical instruments also, so I think they know very well कि when we play the musical instruments तो कौन से part में vibration होती है, and because of which part the vibration is producing sound. Okay, वीडियो को pause करके up to here please do reading everyone. वीडियो को पॉज करके यहाँ तक रेडी करो सभी अभी, जस्ट नाउ. बी फास्ट, बी क्विक. सो लेट अस कम टू द एक्टिविटी. वन मोर इज द 13.5. टेक 6 to 8 बाउल्स और टम्बलर्स. ये भी किया आप लोगों ने, ट्राई करके देखना कि सबसे पहले पानी ज़्यादा, उससे कम, उससे कम. यू कैन सी दिस, इसमें पानी ज़्यादा है, थोड़ा सा कम है उससे, उससे कम है, उससे कम है, उससे कम है, and less. Okay, we can compare the water of these tumblers और glasses और बाउल्स जो भी हमने लिए हैं. और उसके बाद हम इनको जाइलोफोन देखा है, जाइलोफोन प्ले किया है कभी किसी ने? उसमें जो दो वो वॉट वी आई शुड से, जिससे हम बीट करते हैं उसको, जिससे हम स्ट्राइक करते हैं, जो स्टिक्स आती हैं उससे. डिड यू फील द डिफरेंस इन साउंड? सो लेट अस रीड दिस वंस. Take 6 to 8 bowls or tumblers. Fill them with water up to the different levels. हर एक टम्बलर में या बाउल में we will take different level of water, increasing gradually from one end to the another. Okay, जो कि क्या है, इंक्रीज होता जाए. पहले यहाँ से you can take from there also. इसमें कम, फिर ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा, more and more. Okay, now take a pencil and strike the bowls gently. You can take any pencil, you may take any stick. Strike of them in succession. You will hear pleasant sounds. This is your jal tarang. इसे क्या बोलते हैं? जल तरंग. Okay, so when we pluck the string of an instrument like the sitar, the sound that we hear is not only
दैट ऑफ द स्ट्रिंग। जो साउंड हम सुनते हैं दैट इज़ बिकॉज नॉट ओनली ऑफ द स्ट्रिंग, सिर्फ स्ट्रिंग के कारण नहीं है। द होल इंस्ट्रूमेंट इज़ फोर्स्ड टू वाइब्रेट, सारा इंस्ट्रूमेंट वाइब्रेट करता है। एंड इट इज़ द साउंड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट दैट वी हियर। और ये साउंड किसकी होगी? इंस्ट्रूमेंट की, जो हम सुनते हैं। ओके, सिमिलरली व्हेन वी स्ट्राइक द मेम्ब्रेन ऑफ अ मृदंगम, मृदंगम is also a musical instrument. The sound that we hear is not only that of the membrane but all of the whole body of the instrument. Okay, पूरी बॉडी की क्या है ये? That is the whole body of the instrument. जो भी हम साउंड सुनेंगे वो सिर्फ मेम्ब्रेन के कारण नहीं है, that is because of the whole body of the instrument. Okay, so क्वेश्चन है कि हाउ द साउंड इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस। ह्यूमन साउंड कैसे प्रोड्यूस करता है? ओके, देयर इज़ द वॉइस बॉक्स इन ह्यूमंस क्लियरली, इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। लेट अस स्टार्ट दिस पार्ट। द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस। स्पीक लाउडली फॉर अ वाइल और सिंग अ सॉन्ग। ओके, स्पीक लाउडली और सिंग अ सॉन्ग। और बज लाइक अ बी, बी की साउंड कैसी होती है? बजिंग साउंड। पुट योर हैंड ऑन योर थ्रोट एज शोन इन द फिगर 13.8। अपने थ्रोट पे, यहाँ पे यू कैन सी इन दिस डायग्राम देयर। जब हम बोलते हैं तो वाइब्रेशंस होती हैं। ट्राई टू स्पीक समथिंग, कुछ बोलने की ट्राई करो और अपना जो हैंड है थ्रोट पे टच करो, थ्रोट को होल्ड करो। नाउ यू कैन सी व्हेन वी स्पीक देयर इज द प्रोडक्शन ऑफ वाइब्रेशंस। ओके, in humans the sound is produced by the voice box or the larynx. humans में sound produce कैसे होती है? voice box और larynx से। put your fingers on the throat and find a hard bump that seem to move when you swallow. Okay, when you swallow something then also there is the vibrations. put your finger on the throat and find a hard bump, एक हार्ड, यू विल फाइंड अ हार्ड बम्प, उसको फील करो। ओके, जो कि व्हेन यू स्वेलो दैट सीम्स टू मूव। जब हम स्वेलोइंग करते हैं तो क्या लगता है? दैट सीम्स टू मूव। दिस पार्ट ऑफ द बॉडी इज नोन एज वॉइस बॉक्स। इस पार्ट को क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स। इट इज़ एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप। कहाँ पे है? विंड पाइप के अपर एंड पे। टू वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस द वॉइस बॉक्स। ओके, टू वोकल कॉर्ड्स जो है स्ट्रेच्ड हैं अक्रॉस द वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स के, इन सच अ वे दैट इट लीव्स अ नैरो स्लिट बिटवीन देम फॉर द पैसेज ऑफ एयर। कैसे स्ट्रेच है? लाइक इन दैट वे दैट दे आर लिविंग अ नैरो स्लिट। स्लिट मीन्स पाथ, वो एक पाथ छोड़ देते हैं बिटवीन देम फॉर द पैसेज ऑफ एयर, ताकि जो एयर है वो पास होती रहे। ओके, सो व्हेन द लंग्स फोर्स एयर थ्रू द स्लिट, जब लंग्स एयर को फोर्स करते हैं इन स्लिट्स के थ्रू, स्पेस के थ्रू, द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट प्रोड्यूसिंग साउंड। तो जो वोकल कॉर्ड है वो वाइब्रेट होंगी और साउंड प्रोड्यूस करेंगी। ओके, सो मसल्स अटैच्ड टू द वोकल कॉर्ड्स कैन मेक द कॉर्ड्स टाइट और लूज। जो मसल अटैच्ड हैं वोकल कॉर्ड से, व्हाट दे विल डू? दे कैन मेक द कॉर्ड टाइट भी और लूज भी। व्हेन द वोकल कॉर्ड्स आर टाइट एंड थिन द टाइप और क्वालिटी ऑफ वॉइस इज़ डिफरेंट। जब टाइट होंगी या थिन होंगी तो जो क्वालिटी है या टाइप है वॉइस की इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट व्हेन दे आर लूज एंड थिक। ओके, सो बाकी हम कल करेंगे। इट इज़ अप टू हियर टुडे। एक्टिविटी 13.6 we will start tomorrow. Clear? So I will send the table also now. You may see that table which I was saying. Which one table I was saying? This one. You may fill in your books, or I think you should try today yourself. Okay, अपने आप सर्च करो और try to fill this table yourself today. Musical instruments and their vibrating parts. कि कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का कौन सा पार्ट वाइब्रेशन करके साउंड प्रोड्यूस करता है। ओके ओके, डू इट योर सेल्फ। आई एम नॉट गोइंग टू सेंड, ओ आई विल सेंड टुमारो, देन यू कैन मैच।
Okay, try to do it today yourself. So class, we will start tomorrow from 13.6. I think reading is also done by everyone in between by pausing the video. Okay, so thank you everyone. We will start tomorrow activity 13.6. Goodbye class. Okay.